See, in the last lecture, we have started with the chapter chemical kinetics. And in chemical kinetics, we have said that it is a branch of chemistry which deals with the rate of chemical reaction and factor affecting this rate. Then we have seen that there are two types of the rate: average rate of reaction there are two rates of reaction. The first one is a average rate of reaction, correct? And it is a change in the concentration of the reactant or a product divided by the time interval over which the change occurs. Then what is the unit? We have seen the unit will be what? Mole per dmq per second, or unit can be what? Mole per liter per second. Then we have seen the instantaneous rate. Second, we have seen that when we write down the rate of with respect to reactant, we have to put the minus sign. Minus sign means what? Rate is not negative. Minus sign means what? The rate is not negative. It is the minus sign indicates what? The reactant concentration is decreasing with the time. Okay. Then for product, when you write down the rate with respect to the product, we have to write down the plus sign. And if you want to make all rates equal, the rate of reaction, then the rate of reaction should be divided by the coefficient of the equation. Like for example, here the coefficient is 1 plus 3b plus 2c. 3 and 2 are the coefficient. So to get the rate of reaction and all rates to be equal, the rates are divided by the coefficient. And after that, we have seen the instantaneous rate. What is instantaneous rate? The rate of particular reaction at or rate of reaction at a particular instant is called as a instantaneous rate. It is a rate measure over a very, very small period of time. It is a rate measure over a very, very small period of time, and it is denoted by the symbol Tx, or it is denoted by the symbol small d. Again, here with respect to reactant, we have to put the minus sign. For product, we have to put the plus sign. And in order to make all the rates equal, the rate of the reaction should be divided by what? Coefficient. Okay. Now we'll start with the today's part. We'll do the numerical first. Numerical we'll do here. The first I'm having here page number 121. Problem 6.1. Page number 121. Page number 121, problem 1.61, problem number 6.1. Now, what is the problem here? This is, they have given the equation 2N2O5 in the gaseous state gives you 4NO2 in the gaseous state plus O2 in the gaseous state. Okay, they have given this reaction. Then they have given here the rate of, they have given there, the rate of disappearance of N2O5 is given. Now disappearance means what? Because N2O5 is a reactant, and when reactant will react, its concentration goes on decreasing, and that's why they use the word disappear. Either we can use the word disappearance, or we can say rate of consumption. Either we can use, actually normally in the formula we have used the word consumption,
But for consumption, which word we can use? Disappearance also. So rate of disappearance of N2O5. Now N2O5 is a reactant. So which sign we write here? Minus. And then D, N2O5 by dt. Because for reactant we write minus sign, and this rate is equal to 0.02 mole per dm cube per second. The rate of disappearance of N2O5 is equal to 0.02 mole per dm cube per second. And then ask here, the rate of formation of NO2, rate of formation of O2, rate of formation of NO2 and rate of formation of O2. And formation means what? Plus sign. And then D, NO2 by dt. We have to find out. And plus O2 is also a product. So D, O2 by dt. We have to find out this, both the rates. And for rates, what is the unit? Mole per dm cube per second. Mole dm raised to -3 per second raised to -1. Okay, so they have given the rate of consumption of the reactant, and they have asked us the rate of formation of NO2 and O2. So we know that for reactant we write the minus sign, and for product we write down the plus sign. And in kinetics, when we talk about the rate, we talk only about the which rate? Instantaneous rate. But every time we cannot use the word instantaneous, so simply we write what? Small t. Now here, we'll write down the equation. All rates are equal according to this equation. So rate of reaction is equal to, now see here, which number is there? Coefficient is 2. So I'll just write minus 1/2 dN2O5 by dt equal to 4. So, but it is a product. So we write here 1/4 d NO2 by dt equal to plus product. So we can say plus d O2 by dt. Okay, so here in this case, rate of consumption, so we write minus sign, rate of formation, so we write plus sign, and coefficient are written as the denominator. Now see here, they have given the rate of minus dN2O5 by dt is how much? 0.02. And we have to find out the NO2 upon dt. So see now here, I can compare these two values. I can compare these two values. So here first part, A, minus 1/2 d N2O5 by dt equals to 1/4 d NOT by dt. Correct? I am comparing these two parts because now as per this equation, rate of reaction is equal to rate of consumption of N2O5 is equal to rate of formation of NO2 and is equal to rate of formation of O2. So I can compare both the rate together. But here already we know the value of minus dN2O5 by dt. How much it is? 0.02. So here I know, see 1/2 into, I know the value of what? Minus dN2O5 dt, that is 0.02 equal to 1/4 d NO2 by dt. So here we can just divide. So if we divide, how much will get? 0.01, and then 4 will go on this side. So here I will get 0.01 equal to 1/4
dNO2 by dt. And so 4 will go on this side. So here I can say 0.04 d NO2 by dt, and therefore dNO2 by dt equal to 0.04, and rate is measured in which unit? Mole per dm cube per second. 0.04 mole per dm cube per second. It is for NO2. After NO2, we have to find the value for O2. So now again, what we can do, you can take this value and this value and compare. You can compare this and this also. आप ये दो वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज आपको अभी NO2 का रेट मालूम है, लेकिन अगर एग्जाम में कुछ रॉन्ग हुआ रहेगा तो इज बेटर टू कंपेयर विद द फर्स्ट एंड द लास्ट नाउ, बिकॉज O2 हमें कैलकुलेट करना है, dO2 by dt कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है. So I'll compare the first and third now. So I'll write B part minus 1/4 d N2O5 by dt is equal to d O2 by dt. And then here 1/4 I will keep, sorry, 1/2. 1/2 I'll keep it as it is, and we know the value of minus dN2O5 by dt. We know the value here, minus dN2O5 by dt equal to how much? 0.02. So we'll write here 0.02 equals to dO2 by dt, and then we get here 0.01 dO2 by dt. So dO2 by dt equal to 0.01 mole per dm cube per second is the rate of formation of O2. Yes? आपको आ रहा है प्रॉब्लम समझ में, या कुछ प्रॉब्लम में डाउट लग रहा है? बोलो. और एक मैं न्यूमेरिकल करूंगा इस टाइप का, थोड़े और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ डाउट्स लग रहा है क्या आपको? नो सर. ओके, तो अभी यहाँ पे देखो मैं सारे रेट्स को कंपेयर करता हूँ. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे हमें थर्ड और एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना है, और एक क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कितना रहेगा. आई विल जस्ट राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने क्या इक्वेशन लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, आप तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो, अगर ये लोगे तो भी चलेगा, ये लोगे तो भी चलेगा, या ये लोगे तो भी चलेगा, तीनों में से कोई भी आप एक वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले फर्स्ट वाला ले लूंगा. यहाँ पे क्या आएगा देखो, माइनस 1/2 d N2O5 by dt, and we know that here equal to 1/2, and we know the value of minus dN2O5 dt is how much? 0.02. that is equal to 0.01. रेट है मोल पर डीएम क्यूब के लिए. आप सी मोल पर डीएम क्यूब इज कॉल्ड एज मोलार, मोल पर डीएम क्यूब इज कॉल्ड एज अ मोलार. तो मोल आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोलार called as a molar. So molar per second भी चलेगा, या मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड भी चलेगा. So here I can write down the unit as mole per dm cube per second. Now if I find out the rate of reaction by using other value, देखो रेट ऑफ रिएक्शन अभी मैं इसे कैलकुलेट किया तो मुझे कितना आ रहा है, 0.01 आया.
अभी मैं इसे यूज करूंगा 1/4 DNO2/dt 1/4 DNO2/dt एंड हमें मालूम है कि NO2 का रेट कितना आया था 0.04 आया था. तो हियर आई राइट डाउन 1/4 इंटू 0.04. अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 0.01 मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड. देखो ये भी 0.01 है, ये भी 0.01 है. अभी थर्ड rate of reaction is equal to this and it is equal to what DO2/dt. So rate of reaction equal to DO2/dt and already यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है DO2/dt is equal to how much 0.01. So it is equal to how much 0.01 mole per DM cube per second. So you can see here आप कोई भी एक वैल्यू अगर यूज करोगे, आप N2O5 यूज करोगे तो भी आंसर 0.01 आ रहा है. अगर आप DNO2/dt यूज करोगे तो भी आंसर 0.01 आ रहा है. एंड अगर आप O2 यूज करोगे तो भी आंसर 0.01. तो ऑल रेट्स आर इक्वल. अगर मतलब ये रेट्स इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, रेट को उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया था. रेट ऑफ रिएक्शन को उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया था. करेक्ट. तो ये प्रॉब्लम डाउट सॉल्व हो गया. लास्ट लेक्चर में किसी ने तो मुझे एक डाउट पूछा था कि सारे रेट्स इक्वल कैसे आएंगे. तो डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा. ठीक है. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अब ये टाइप का और एक न्यूमेरिकल देखो. पेज नंबर 121 and they have given the equation 3I minus in the aqueous state plus H2O8 2 minus in the aqueous state gives you I3 minus in the aqueous state plus 2SO4 2 minus in the aqueous state. They have given the equation 3I minus plus S2O8 2 minus gives you I3 minus plus 2SO4 2 minus. They have given. Now what information they have given here? They have asked us calculate the rate of formation of I3 minus. So हमें find out करना है. ये देखो ये product है, तो we have to calculate what rate of I3 is a product. So rate of formation of I3 minus. तो कैसे लिखोगे I3 product to the plus D I3 minus by dt. ये आएगा. Then उन्होंने क्या बोला है, rate of consumption of I minus. ये I minus का consumption. तो I minus के लिए रेट खाली कैसे लिखोगे D I minus by dt और ये रिएक्टेंट तो माइनस है. कोएफिशिएंट बाद में लिखना है. कोएफिशिएंट कभी लिखना है जब हम लोग सारे रेट्स को कंपेयर करेंगे तब. रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस. तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस क्या लिखोगे माइनस DI माइनस बाई dt. देन rate of consumption of S2O8 2 minus. Rate of consumption of S2O8 2 minus. तो S2O8 2 minus क्या लिखोगे आप, रिएक्टेंट है तो लिखोगे माइनस
D S2O8 2 minus by dt. एंड अब ये प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2 minus is equal to plus DSO4 2 minus by dt, and this value they have given, and this value they have given equal to how much? 0.022 mole per dm cube per second, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो आउट ऑफ द दिस टू आर द रिएक्टेंट, तो उनका कंजम्पशन रेट हमें कैलकुलेट करना है। ये प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रेट कैलकुलेट करना है और सल्फेट का रेट दिया हुआ है। ओके, एंड आल्सो दे हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट overall rate of reaction. Also calculate what? Overall rate of reaction. Overall rate भी calculate कर दो। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओवरऑल रेट, मतलब जस्ट विल राइट व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सारे रेट को कंपेयर कर दो। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1/3, तो यहाँ पे 1/3 मतलब माइनस 1/3 di माइनस बाई dt इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन आएगा लेकिन कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो क्या लिखोगे आप, माइनस डी S2O8 2 माइनस बाई dt इज इक्वल टू, ये हमारा प्रोडक्ट है I3 माइनस, कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो क्या लिखोगे, प्लस डी I3 माइनस बाई dt इक्वल टू SO4 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 कोएफिशिएंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 प्लस 1/2 डी SO4 2 माइनस बाई dt, और ये प्लस, ये चारों वैल्यूज हमारे पास आ गए। di-3 हमें कैलकुलेट करना है, S2O8 2 माइनस कैलकुलेट करना है, di3 माइनस dt भी हमें कैलकुलेट करना है, और ये एक वैल्यू दिया हुआ है, सल्फेट का वैल्यू हमें दिया हुआ है। अभी क्या करेंगे, 1 बाय 1, पहले इसे सल्फेट के साथ कंपेयर करो, बाद में इसे सल्फेट के साथ कंपेयर करो, और बाद में इससे सल्फेट के साथ कंपेयर करो, तीनों को। तो फर्स्ट में कंपेयर करूंगा इससे, तो क्या आएगा, देखो ए पार्ट माइनस 1/3 di माइनस बाई dt इक्वल टू हाफ DSO4 2 बाई dt। फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने ले लिया और लास्ट एक्सप्रेशन ले लिया, लेकिन इसका मुझे वैल्यू मालूम है। देन हियर माइनस 1/3 di माइनस बाई dt इक्वल टू 1/2 एंड DSO4 बाई dt का वैल्यू कितना दिया है, 0.022, तो हियर आई राइट 0.022। So if I'll divide here, I'll get 0.011, and here what we are having, minus 1/3 d I minus by dt, 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, d I minus by dt इक्वल टू माइनस साइन 0.033, और एक करेक्ट है, देखो माइनस डी आई माइनस बाई डी टी, देखो यहाँ पे माइनस डी आई माइनस बाई डी टी, we got the rate of consumption, and what is the unit we'll write here, mole per dm cube per second. This is the rate of consumption of I minus. This is rate of, minus sign means what, consumption of I minus is equal to 0.033
मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ये हो। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू, ये वैल्यू और ये इसको कंपेयर करेंगे। हमें ये रेट मालूम है, तो दोनों को कंपेयर करो, S2O8 2 माइनस एंड हाफ SO4 2 माइनस बाई dt। ओके, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो D part will write here minus DS2O8 2 minus by dt equal to plus 1/2 dt। यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ एंड DSO4 -2 का वैल्यू कितना था, 0.022, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.011 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ये क्या था हमारा, रेट ऑफ consumption, why consumption, because minus sign, rate of consumption of S2O8 2 minus, ये सेकेंड रेट हुआ। ओके, तो फर्स्ट कैलकुलेशन हुआ, सेकेंड कैलकुलेशन हुआ, अभी थर्ड कैलकुलेशन, कौन सा कैलकुलेशन है हमें देखो, DI3 माइनस DT, और यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो सी पार्ट DI3 माइनस DT इक्वल टू हाफ D SO4 2 minus by dt. Again I can say minus DI3 minus नहीं, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन, DI3 by dt equal to half SO4 value is how much, 0.022, तो अगर डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 0.011 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, और ये हमारा प्लस साइन है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस। तो हमें तीनों रेट्स मिले, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस मिला, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ S2O8 2 माइनस मिला, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस मिला। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल रेट के लिए कोई भी एक लो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू दिस लेना तो भी चलेगा, इक्वल टू दिस लेना तो भी चलेगा, कोई भी एक ले लो, चारों लेने की जरूरत नहीं है, चारों नहीं, कोई भी एक, तो मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन overall rate of reaction is equal to -1/3 into, देखो -1/3 इंटू क्या था, DI माइनस बाई DT, DI माइनस बाई DT, और हमारे पास देखो यहाँ पे माइनस DI माइनस बाई DT का वैल्यू इतना 0.03, तो यहाँ पे 1/3 आएगा, और माइनस DI माइनस DT का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.033, that is equal to 0.011 mole per dm cube per second is the overall rate of reaction। अब किसी यहाँ पे भी ले लो, अगर आप ये यूज करोगे तो भी कितना, देखो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो माइनस डी ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, S2O8 2 माइनस बाई dt, और यहाँ पे था रेट हमारे पास S2O8 -2 का रेट कितना था, 0.011 था, और हमारा लास्ट का आंसर भी 0.011 आ रहा है। अगर आप यूज करते थे DI3 माइनस बाई DT, तो DI3 माइनस बाई DT कितना आ रहा था, 0.022 आ रहा था, 0.022 आ रहा, सॉरी 0.011 आ रहा है, और यहाँ पे भी लास्ट आंसर क्या आ रहा है, 0.011 आ रहा है। ओके, और अगर आपने सल्फेट यूज किया होता
तो हाफ इंटू सल्फेट का रेट कितना था 0.022 था, तो 0.022 को अगर हाफ से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 0.011, मतलब ऑल रेट्स आर कमिंग द सेम। तो ओवरऑल रेट फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज करो, सारे एक्सप्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारे प्रॉब्लम थे विच आर बेस्ड ऑन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, और विच आर बेस्ड अपॉन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये दो प्रॉब्लम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। ओके, now we'll go for the next heading. Next heading. But before I go for the next heading, if you remember, maybe in the last year, in chapter chemical equilibrium, if you remember, we had calculated in last year in the chapter chemical equilibrium, you had calculated the rate of reaction. एक formula लिखा था आपने, rate of reaction के लिए formula लिखा था last year, that is in 11th standard. 11th standard under the chapter chemical equilibrium आपने कैलकुलेट किया था रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे कैलकुलेट किया? देखो, अगर हमारे पास A moles of A react with B moles of B, एंड अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसमें क्या मीनिंग था कि कैपिटल A एंड कैपिटल B आर द रिएक्टेंट, कैपिटल A एंड कैपिटल B आर द रिएक्टेंट, and small a and b are the stoichiometric coefficient. Capital A and capital B are the reactant, small a and small b are the stoichiometric coefficient. इसका मतलब अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, RxN is proportional to concentration of A raised to A. मतलब A का जो कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू B, मतलब B का कॉन्सेंट्रेशन जब लिखोगे तो इसका कोई भी पावर चला जाएगा, एंड देन सेम वी कैन जस्ट राइट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू A इंटू B रेज टू B, एंड दिस एक्सप्रेशन, ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम लोग इस तरह से अगर रिएक्शन का रेट लिखेंगे, ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, विच रेट अकॉर्डिंग विच लॉ? लॉ ऑफ मास एक्शन। डू यू रिमेम्बर? आपको कुछ याद आ रहा है क्या कि अगर हमारा ये कैपिटल A एंड कैपिटल B रिएक्टेंट है, स्मॉल a एंड स्मॉल b उनके कोएफिशिएंट है, तो क्या लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और A का कोएफिशिएंट क्या चला जाएगा? पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और चला जाएगा B का पावर। तो इसका मतलब जो भी कोएफिशिएंट रहेंगे, कोएफिशिएंट आर सो according to law of mass action, coefficient of reactant are written as a power of concentration term. According to law of mass action, क्या किया था हम लोगों ने? जो भी कोएफिशिएंट है, that coefficient of the reactant is written as the power of the concentration term. ये हमारा लास्ट ईयर का केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ ऑफ मास एक्शन का कंसेप्ट था, बट दिस ईयर हमें स्टडी करना है
एक नया लॉ, that is the new law is rate law. The new law is rate law, RATE, rate law. Now what is the rate law here? रेट लॉ क्या है वो हमें देखना है यहाँ पे. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे तो कंसीडर the reaction A moles of A react with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. मतलब capital A and B are the product, capital C and D are the capital A and B are the reactant, capital C and D are the product, and small a, b, c, d are the coefficient of the balanced chemical equation. Correct? तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा the rate of reaction at a given time is proportional to its molar concentration. रेट मतलब रिएक्शन का जो रेट है, rate of reaction at a given time is proportional to its molar concentration at that time raised to simple पावर. देखो रेस टू सिंपल पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. रेस टू सिंपल, यहाँ पे भी क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी एंड रेस टू पावर. बट पावर कौन सा पावर था, जो ए का कोएफिशिएंट था वो ए का पावर चला जाएगा, और जो कैपिटल बी का कोएफिशिएंट था वो इसका पावर चला जाएगा. करेक्ट? लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो रेट ऑफ reaction at a given time is proportional to its molar concentration at that time raised to a simple power. मतलब मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, देखो rate of reaction proportional to concentration of A, ये raised to X. देखो A नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा, raised to X into concentration of B raised to Y. मैंने यहाँ पे पावर A और B नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट A था, यहाँ पे कोएफिशिएंट जो B था, उनको मैंने नहीं लिखा. मैं यहाँ पे पावर क्या लिखा है, X and Y लिखा है, X and Y. मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको. So therefore we can write here rate of reaction is equal to K. K is called as what? Proportionality constant. K is called as a proportionality constant into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. यहाँ पे पावर मैंने X and Y लिखा है, मतलब इसका मतलब वेरी क्लियर होता है कि यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो कंपल्सरी पावर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. कंपल्सरी पावर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. So I'll just explain first what is K, where K is proportionality constant. K को क्या आप बोलोगे, K is called as a proportionality constant. Proportionality constant is called as
rate constant is called as a rate constant, which is independent of concentration, which is independent of concentration, but depends on temperature. Depends on temperature. See here, मतलब यहाँ पे जो एक k है, k को हम लोग क्या बोलेंगे? Proportionality constant. K can be called as what? Proportionality constant. It is also called as the rate constant because the rate of reaction is the rate constant. और k का जो value है, it does not depends upon the concentration. K का value independent of concentration, but depends upon what? Temperature. So always remember, the value of the K depends on what? Temperature. The value of the K depends upon the temperature. Correct? Okay. Now we'll go for the meaning of x power x and y. See, what is the first point we have said? Consider the reaction. और फिर हमने ये expression बोला से. Second, where K is the proportionality constant. Similarly, or I'll just write down the one below other. The power x and y of the concentration term A and B in the rate law not necessarily equal to stoichiometric coefficients like A and B. देखो यहाँ पे हमें जब रेट लॉ लिखा तो यहाँ पे कोएफिशिएंट A and B था, बट व्हेन यू राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, जब उन्होंने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, उन्होंने पावर क्या लिखा था? एक्स एंड वाई लिखा था. मतलब एक्स एंड वाई का जो वैल्यूज यहाँ पे है, यहाँ पे जो एक्स एंड वाई का जो वैल्यूज है, तो क्या लिखा मैंने? द पावर एक्स एंड वाई ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ए एंड बी इन द रेट लॉ नॉट नेसेसरीली कि इक्वल टू व्हाट? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. मतलब हमारा जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा वही पावर आना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. हाँ, कभी ये ए एंड बी यहाँ पे पावर आ सकते हैं, कभी ये ए एंड बी यहाँ पे पावर नहीं आ सकते. यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा, लेकिन वैल्यू कंपलसरी ए और बी इतना होना जरूरी नहीं है. देखिए, जबकि हमारे 11th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ मास एक्शन में कंपलसरी था कि लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या था कि मैं यहाँ पे जो भी पावर लिखूंगा तो कंपलसरी क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट ही होना चाहिए. यहाँ पे मैं जो भी पावर लिखूंगा कंपलसरी वो क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट ही होना चाहिए. ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन था, और जो हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में यूज किया था, और हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉब्लम के लिए यूज किया था. लेकिन अभी यहाँ पे क्या यूज करना है? हमें रेट लॉ यूज करना है. हमें क्या यूज करना है? रेट लॉ. और रेट लॉ में क्या रहेगा? रेट लॉ में आप जो पावर लिखोगे वो पावर नॉट नेसेसरी कि ए एंड बी इतना ही रहेगा.
it is going to be the same as A and B or it is going to be different or other than A and B. तो power x and y क्या, तो यहाँ पे मैंने लिखा है here the power x and y of the concentration term A and B in the rate law not necessarily equal to stoichiometric coefficient like A and B. मतलब stoichiometric coefficient रहेगा वही power आना चाहिए, ऐसा रूल नहीं है. ओके, तो x and y क्या है? so thus x and y may be simple whole number. मतलब x and y क्या रहेंगे? तो x and y may be simple whole numbers. x and y value may be 0 or fraction, or it can be what? Fraction. मतलब x and y के जो value रहेंगे, they may be simple whole number, they may be 0 or they may be fraction. And the very, very important here, realize that x and y are determined experimentally. मतलब जो x and y जो हम लोगों ने पावर लिखा था, पावर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट. हम लोग कुछ भी पावर नहीं लिखेंगे, हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और फिर हमें डिसाइड करेंगे पावर x एंड y कितना लिखना है. तो इसलिए मैंने बोला कि जो कोएफिशिएंट रहेगा वही पावर आएगा, ऐसा रूल नहीं है. x का जो यहाँ पे वैल्यू है ये हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया है? बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. y का वैल्यू जो यहाँ पे कैसे डिसाइड किया है? बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. दैट्स व्हाई दे से दैट रियलाइज दैट x and y are determined experimentally. They are determined experimentally, and therefore the rate law, जो हमारा rate law है, therefore the rate law is determined एक्सपेरिमेंटली. मतलब हमारा जो रेट लॉ है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, रेट लॉ का जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये कैसे आ रहा है? थियोरेटिकली नहीं आ रहा है, मतलब इक्वेशन देख के नहीं हम लोग लिख रहे. द रेट लॉ इज व्हाट? डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली. क्योंकि ये पावर जो हम लोग एक्स एंड वाई जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये पावर एक्स एंड वाई हम लोग एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट निकाल रहे, तो बाद में लिख रहे. तो इसीलिए जो हमारा रेट लॉ का जो रेट इक्वेशन आ रहा है, ये हमारा रेट लॉ है, और रेट लॉ का जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन इक्वेशन है. सो रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली and expresses the rate of a chemical reaction in terms of molar concentration of the reactant and not predicted from the stoichiometric coefficient or stoichiometries of the reaction, cannot be predicted from the stoichiometry
CHIOMETRI, stoichiometries of the reactant. मतलब हम इक्वेशन देख के रेट लॉ फाइंड आउट नहीं कर सकते. इक्वेशन देख के, इक्वेशन में रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट देख के रेट लॉ नहीं लिख सकते. तो रेट लॉ कैसा रहेगा हमारा? रेट लॉ इज अ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड एक्सप्रेस. तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने रेट लॉ लिखा हुआ है. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A raised to X into concentration of B raised to Y. लेकिन वैल्यू ऑफ द X and Y आर डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली. इसीलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. लेकिन जो पावर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये पावर स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर बेस नहीं है. जबकि ये पावर हमने कैसे फाइंड आउट किए है? by performing an experiment. Okay, so यहाँ पे the rate law is determined experimentally and express the rate of chemical reaction in terms of molar concentration of the reactant and not predicted from the stoichiometries of the reactant. मतलब reaction के equation से नहीं लिखा है. अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगा, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2H2O2 in the gaseous state decomposes to gives you a 2H2O plus O2. 2H2O2 decompose to gives you a 2H2O in the liquid state and O2 in the gaseous state. First, the rate of reaction is proportional to. रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के ऊपर. द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of H2O2. Rate of reaction is proportional to concentration of H2O2. बराबर, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर. यहाँ पे दिखा है हम लोगों ने कि the rate of chemical reaction in terms of what? Molar concentration of the reactant. So rate of reaction is proportional to what? Concentration of the reactant. So I can just write down here rate. अभी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के खाली रेट लिखोगे तो भी चलेगा. रेट इज इक्वल टू और आई कैन से प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2. रेट इज प्रोपोर्शनल टू concentration of H2O2 raised to power 1. H2O2 raised to power 1. बराबर है. यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखोगे तो कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर 1. तो पावर 1 कैसे मिला उन्हें? द पावर इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली. तो इसलिए हमारा क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू K इनटू concentration of H2O2 raised to 1. तो हमें यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो पावर हम लोग लिखेंगे, पावर मुझे 1 आया. अभी पावर 1 कैसे आया? तो उन्होंने बुक में दिया हुआ इसलिए हम लोग लिख रहे, लेकिन आगे चल के हम लोग ये पावर भी डिटरमाइन करेंगे. कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने. लेकिन अभी तो तुम्हें इक्वेशन लर्न करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे बैलेंसिंग का नंबर 2 है, यहाँ पे बैलेंसिंग का नंबर 2 है, लेकिन रेट लॉ में H2O2 का पावर 1 है. तो ये जो पावर 1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द पावर 1 इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटल. द पावर 1 इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. बस ये मुझे बोलना है यहाँ. तो मुझे यही बोलना है यहाँ के यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट रहेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि वही कोएफिशिएंट यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट आ रहा है वही यहाँ पे पावर आएगा, लेकिन इसका मतलब हमने यहाँ पे देख के नहीं लिखा है.
वो हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ है। कभी यहाँ पे 2 रहेगा, इधर 1 आएगा, कभी यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा, कभी यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। लेकिन ये 2 हम लोग यहाँ पे देख के नहीं लिख रहे, हम लोग इक्वेशन का कोएफिशिएंट नहीं देख रहे, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा रेट लॉ है। तो व्हाट इज रेट लॉ, ये उसका स्टेटमेंट है। रेट लॉ इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, हम लोग रेट लॉ कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंटली, एंड एक्सप्रेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और उसका पावर कितना लिखना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली, एंड नॉट प्रेडिक्टेड बाय द स्टाइकोमेट्रीज ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्रीज के ऊपर नहीं है। देखो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रीज 2 था, क्या हम लोगों ने यहाँ पे पावर 2 लिखा, क्या नहीं लिखा, तो जब ये एक्सपेरिमेंटली मिला। ओके, अच्छा सुनो, यहाँ पे कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। ये रेट लॉ का कंसेप्ट समझ में आया? हो सर. अच्छा, काय थोडं कोणी सांगू शकेल का, कोणी सांगायचा जरा प्रयत्न करेल की नेमका काय कन्सेप्ट आहे तो रेट लॉचा?